Good afternoon, dear student. Welcome back in the English class. Dear student, in our previous classes we have done chapter 1 and chapter 2. Now today we are moving to chapter 3. That is the childhood of Gandhiji. Now, little student, you are very much familiar about our great Mahatma Gandhiji. He is also known as the father of nation. He did a great sacrifice towards the nation, and we all praise him for his great work for the mankind. Though lots of words are there to say about Mahatma Gandhi, and we even can't gather that much word of praise towards Mahatma Gandhi. So let us remember him and let us give him respect, and furthermore to do all the activities as he did for the nation in future. Now today, dear student, let us read about Mahatma Gandhi, and in the above box, let me read out what is there. The childhood of Gandhi ji, महात्मा गांधी जी का बचपन. Now बॉक्स में क्या लिखा है वो जरा पढ़ के सुनाता हूँ. Teen years were very teen years were very different for people in the olden times. Read the following excerpt about Mahatma Gandhi's life as a schoolboy. Do you feel your school days are different from his? Do your parents give you more freedom than he had? Now let us see the teenage time of the let us evaluate the teenage time of the olden times and now. There is vast difference we can find there. पहले का टीन एज और अभी का टीन एज का मतलब होता है व्हेन योर ईयर बिकम्स TEEN 13 14 15 16 17 18 and 19. ये 13 और 19 ये टीन एज कहता है. So in the olden times it was very difficult to spend the time. Teenage time olden एज में बहुत डिफरेंट था, अतः वेरी मच इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट टू स्पेंड इट. लेकिन आज का उस समय और आज का समय में अगर इफ यू मैच एंड इफ यू इवेल्युएट नाउ टुडेज टीनेजर, they have lots of freedom, they are allowed to do anything they want. But in the olden times it was not allowed. The parents, they didn't give so much freedom that the children they are getting today. पहले पहले का पेरेंट्स अपने बच्चे को टीन एज के टाइम में और सुरक्षित और स्ट्रिक्ट करते थे. लेकिन अभी का टीन एज में पेरेंट्स ये सोचता है, अंडरस्टैंड करता है कि बच्चे का माइंड ग्रो अप हो गया तो उन लोगों को थोड़ा खुला, दे लीव देम लिटिल बिट फ्रीडम, फ्री कर देता है. सो नाउ लेट अस मूव. अब ये स्टोरी पढ़ के और आपका स्टोरी दोनों में डिफरेंट आपको मिलता है या नहीं, आपका टाइम और ये महात्मा गांधी का टाइम. लेट अस मूव. डू योर पेरेंट्स गिव यू मोर फ्रीडम देन ही हैड? महात्मा गांधी जैसा फ्रीडम आपको मिला है, आपका पेरेंट्स देता है? हम लोग ये स्टोरी पढ़ के हम लोग ये जान लेंगे. नाउ लेट अस मूव टू आवर पैराग्राफ्स. दिस इज अबाउट visible, you can see there, otherwise you have to uh, make a link of the book. Now let us move to our first paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग जाएंगे. मोहनदास करमचंद गांधी was the youngest of 4 children in his family. Mohandas' mother, Putalibai, was an intelligent and sensible lady. Mohandas loved and respected her very much. Now यहाँ पे एक छोटा सा मोहनदास के बारे में बताया, महात्मा गांधी जी के बारे में. He was the youngest of 4 children. उसके परिवार में 4 सदस्य था,
उसके बाद में उसका तीन ब्रदर्स था अथवा सिस्टर था. They were four of them. So among them, Mahatma Gandhi was the youngest. Now, Putali Bai was an intelligent and sensible lady. His mother name was Putali Bai, and she was intelligent, बहुत ज्ञानी थे, and sensible lady. Sensible का मतलब होता है व्यवहार में कुशलता, अथवा समझदार लेडी था, समझदार एक स्त्री था, ज्ञानी और समझदार. मोहनदास loved and respected her very much. मोहनदास loved and respected her very much. मदर को, मम्मी को तो सब आदर सत्कार तो करते ही, रेस्पेक्ट करते ही, लव करते ही, ये सब. सो मोहनदास ऑल्सो डिड द सेम थिंग. मोहनदास भी अपने मम्मी को प्यार करते थे और उसको रेस्पेक्ट, आदर करते थे, उसका हर चीज मानते थे. इसका मतलब. नाउ let us move to our next chapter. Now see, Putali Bai was deeply religious. She respected the religious practices she had imbibed from her elders with complete faith and dedication. Putali Bai, she was totally a religious woman. वो धर्म में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, एकदम गंभीर तरीके से धर्म को मानते थे, रिलीजियस फैक्ट्स को, रिलीजियस वे को. She respected the religious practices she had imbibed from her elders with complete faith and dedication. एकदम आदर सत्कार, एकदम फेथ, विश्वास के साथ और एकदम लगन के साथ जो अपने एल्डर्स, बड़े बड़े लोग ने सिखाया था धर्म के बारे में, धर्म के प्रैक्टिसेस के बारे में, तो उसको ये पुतली बाई, महात्मा गांधी जी का मदर, एकदम उसको सिंसियरली फॉलो करते थे, विश्वास के साथ और एक डेडिकेशन के साथ. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. She prayed before every meal and went to the temple every day. She fasted for several days. She believed that fasting helped in developing a strong willpower to resist temptation. Now, she prayed before every meal and went to the temple every day. Dear children, the food is served before you by the God. Though in the material world it is served by your mother or the father or your elders, but it is served by the God. So हम लोग मील, कोई भी खाना खाने के आगे हम लोगों को थोड़ा भगवान को याद करना है. We have to remember the God and pray that He had given us the food, and the food may give us the strength and the knowledge. ऐसे करके हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं. So पुतली भाई भी जब भी मील खाते थे, खाना खाने के आगे प्रार्थना करते थे, बिकॉज शी वॉज अ रिलीजियस वुमन. एंड हर सुबह मंदिर जाते थे, हर दिन वो क्या करते थे, मंदिर जाते थे. शी बिलीव दैट फास्टिंग भी रखते थे. फास्टिंग का मतलब होता है व्रत रखना. वो क्यों व्रत रखता था? क्योंकि व्रत रखने से उसको एक विश्वास था. शी हैड अ ग्रेट बिलीव दैट इट डेवलप्स अ स्ट्रांग विल पावर. अपना इच्छा जो अंदर का शक्ति है, अपना शक्ति अंदर में रहने वाला, जो कहते हैं ना डिटर्मिनेशन, वो उसको और मजबूत कर देते हैं. और रेजिस्ट टेम्पटेशन, जो लोभ लाभ जो है हम लोगों का, रीस जो हम लोग एक व्यवहार, एक हैबिट निकलता है, उसको कंट्रोल करता है. सो नाउ लेट अस मूव अगेन. पुतली Bai raised her children strictly and made sure that they followed all that she believed in. Now, ये सब होते होते पुतली बाई अपने बच्चे के ऊपर भी स्ट्रिक्ट होते थे, क्योंकि उसको अच्छा संस्कार देना है, अच्छा रास्ते पे चलाना है, चलने के लिए प्रेरणा देना है. As she was walking, as she was following, she had followed her elders. Good walk, good way, and so she wanted her children to do the same thing. So वो भी अपने बच्चे को यही चाहते थे. So she was strict towards her children. वो एकदम strict था अपने बच्चे के ऊपर, so that they may follow the good path
and believed in the religion, believe in God. Now, let us move to next paragraph. When Mohandas was 7 years old, his father Karamchand Gandhi got a new job in Rajkot and moved out of Porbandar. Mohandas was one of the best students in his new school. Now, as far as you are concerned about the government tax, government job के बारे में आपको मालूम है, it gets transfer from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह हम लोगों को ट्रांसफर करते रहना है. तो इन द सेम में मोहनदास का पापा का भी पोरबंदर जो उसका जन्मथल था, उस जन्मथल बर्थ प्लेस से राजकोट उसका काम ट्रांसफर हुआ था उसका पापा का. सो सॉरी व्हेन मोहनदास जब मोहनदास 7 इयर्स का था, उसका फादर को ये ट्रांसफर नहीं, उसको नया जॉब मिला था राजकोट में. तो राजकोट में वो लोग चला गया पोरबंदर से, जहाँ पे उन लोगों का बर्थ प्लेस से उसको छोड़ के वो लोग राजकोट चला गया, क्योंकि वहाँ पे करमचंद गांधी का पापा को नया जॉब मिला था. मोहनदास वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज न्यू स्कूल. अब नया पापा का नया जॉब, दैट मीन्स अ चेंज ऑफ प्लेस, दैट मीन्स अ चेंज ऑफ स्कूल ऑल्सो. तो वो जो नया स्कूल था उसमें महात्मा गांधी बहुत अच्छा बेस्ट स्टूडेंट था. Now, let us move. He liked reaching school early, so he managed with eating the leftovers from dinners if breakfast was not ready. Frightened of ghosts, robbers, and snakes, Mohandas was like any other small town boy. Now यहाँ पे उसको ये बहुत अच्छा लड़का था. He was also previously we call him a best student according to the passage. तो इसका कारण क्या था, वो स्कूल एकदम अर्ली, ठीक टाइम में, अर्ली अथवा ठीक टाइम से थोड़ा आगे, ताकि यू विल बी ऑन टाइम फॉर द स्कूल. सो वो इस तरह का उसका हैबिट था स्कूल पहुंचने का. नहीं उस इसके लिए वो कभी कभी क्या होता था, इफ द ब्रेकफास्ट वॉज नॉट रेडी, रात में जो खाना था वो सुबह में वो लेफ्ट ओवर वो फ्राई व्राई करके अथवा उसको गर्म करके खा के वो निकल जाता था. मोहनदास भी दूसरे लड़के टाउन बॉय अथवा हम लोग जैसे साधारण इंसान जैसे वो भी क्या गोस्ट, रॉबर्स एंड स्नेक से डरता था. तो मोहनदास भी वैसा ही था. वो भी गोस्ट से, रबर से एंड स्नेक से वो डरता था. गोस्ट, भूत, रबर्स, डाकू, लुटेरा, स्नेक्स, सर्प, ये चीजों से मोहनदास भी लाइक अदर बॉयज he also got afraid of them. Mohandas was like any other small town boy. Because of his fears, he wanted a light on in his bedroom all night. He was afraid of going out anywhere in the dark. Now, उसका जो डर ऐसा था कि वो रात में लाइट बंद करके सो नहीं पाते थे, लाइट ऑफ करके सो नहीं पाते थे. उसको सोने के लिए हर रात भर लाइट को ऑन रहना चाहिए, रहना था, रखता था वो. सो लाइकवाइज यू मे ऑल्सो डू द सेम एक्टिविटीज. आप लोग भी ऐसे डरते होंगे कि रात में जब सोते समय लाइट को खुला छोड़ के आप सोने का हैबिट बनाया होगा, क्योंकि आपको डर लगता है. और मोहनदास करमचंद गांधी को कहीं पे जाना अंधेरे में, उससे इस चीज से भी उसको डर लगता था. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. Putali Bai had instilled a great sense of honesty in her children. Mohandas did not like the idea of telling lies to his mother. He was always very honest. Unfortunately, the high school he went to in Rajkot put Mohandas in a situation where he had to do this. Such exposure to different boys from other cultures made him question his existing belief. Now here यहाँ पर बताया गया है कि पुतली बाई ने अपने बच्चे के ऊपर एक ईमानदारी का एक चीज अथवा ईमानदारी पुतली बाई ने अपने बच्चे के अंदर में भर भर के
रखा था। तो उसका बच्चे एकदम ऑनेस्ट था। पुतली भाई अपने बच्चे को ऑनेस्ट रखना चाहते थे और उन लोगों को यही शिक्षा दिया जाता था, ये इंस्टॉल किया जाता था उन लोगों के ब्रेन में कि टू बी honest and truth. So Mohandas also, he was also very truth. He also followed the path of truth. मोहनदास कभी भी अपने मम्मी से झूठ बोलना पसंद नहीं करता था, मम्मी हो या पापा। he doesn't like to tell a lie. He was always honest. हर टाइम वो एक ऑनेस्ट था, एकदम ईमानदार। अनफॉर्चुनेटली द हाई स्कूल ही वेंट टू राजकोट। अब जब ये नया स्कूल जो राजकोट कोट में गया, नया स्कूल में, इस टाइम पे मोहनदास को थोड़ा सा गंभीर सिचुएशन में डाल दिया, क्योंकि जो रिलीजियस वे अथवा जो कल्चर अपने मम्मी सिखा रहा था प्राइवेटली, दैट वाज एक्सपोज इन हाई स्कूल। हाई स्कूल में है वो एक्सपोज होने जा रहा है, बिकॉज इन द एट द हाई स्कूल, अब प्राइमरी स्कूल में तो maybe there were a certain number of students, private student, local student, but in high school there are lots of students that comes from out, and they had the different religion, they had the different thinking. ये सब really धार्मिक culture, tradition, everything is different, and they are all mixed up in one place. सब एक ही जगह में मिल के पढ़ते हैं। So they have the different thoughts, different religion, different tradition, different culture. ये सब अलग अलग जब ये एक ही जगह में आए, उस टाइम पे जो महात्मा गांधी को सिखाया गया था, जो कल्चर, जो ट्रेडिशन अपने मम्मी पापा ने, तो उस टाइम पे उसको थोड़ा एडजस्ट होने में क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। सो डिफरेंट बॉयज फ्रॉम अदर कल्चर्स मेड हिम क्वेश्चन इज एग्जिस्टिंग। अब जो सिखाया गया था उसके बारे में अच्छा अच्छा बातें था मोहनदास करमचंद गांधी के अंदर में, उसके कल्चर में। तो ये सब दूसरे लड़के भी पूछते थे, और ये भी दूसरे लड़के का थोड़ा सा जो कल्चर ट्रेडिशन है जो फॉलो कर रहा है उसको जानने में ये भी इच्छा करता था। नाउ लेट अस मूव टू अनदर। व्हेन मोहनदास completed his class 5, he had got to the Alfred High School. It was an English medium school. There he had an opportunity to meet boys from different communities and religions. There were Hindus, Muslims, and Parsis. Once a British official came to Mohandas' class to inspect Alfred High School. The class teacher had warned her students that they must be on their best behavior. Now, जब प्राइमरी स्कूल खत्म हुआ मोहनदास का, अथवा when he moved to Alfred High School, हाई स्कूल में मूव किया, that was an English medium school, and he got a very good opportunity to learn in that school of different communities also. He got a chance to learn about different communities, different उसको उस समय डिफरेंट कम्युनिटीज के बारे में जानने का बहुत मौका मिला। डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन, एंड सो ऑल, एंड रिलीजन आल्सो। देयर वेर हिंदूज, मुस्लिम एंड पारसीज। यहाँ पे कास्ट दिया गया है हिंदूज, मुस्लिम एंड पारसीज। वंस अ ब्रिटिश ऑफिशियल केम टू मोहनदास। अब एक दिन क्या हुआ, अल्फ्रेड हाई स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए एक ब्रिटिश ऑफिशियल आया। तो उस टाइम सबको क्या दिया था, काम दिया था, सॉरी काम। उस दिन सब उसको आने के पहले टीचर ने सब स्टूडेंट को वार्न किया था, एज वी डू इन द स्कूल। कोई भी आता है तो हम लोग पहले कहता था, स्टूडेंट यू हैव टू शो योर डिसिप्लिन, यू मस्ट नॉट वल्गर योर डिसिप्लिन, यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर वे ऑफ डिसिप्लिन। ऐसे करके हम लोग जो वार्न करते हैं, ऐसे ही टीचर ने भी बच्चे के बिहेवियर के ऊपर में वार्न किया था। अब क्या होता है देखिए, देखते हैं। The boys had prepared very well. However, when the official gave the boys 5 words to spell, Mohandas had a problem. He did not know how to spell the word kettle. When the teacher saw Mohandas spelling, he whispered, "Copy quickly the right spelling from the boy sitting next to you." Mohandas refused. The teacher was upset. Refused. The teacher was upset, but Mohandas could not be convinced. अब यहाँ पे बताया है कि जो अल्फ्रेड आया था उसके आगे टीचर ने बिहेवियर अच्छा मेंटेन करना है ये सबको स्ट्रिक्टली वार्न किया था। तो उस टाइम हर बच्चे को 5 वर्ड्स दिया गया था इंस्पेक्ट करने के लिए, बच्चे कितना पढ़े हैं, कितना जानते हैं। तो 5 वर्ड्स दिया था।
उस टाइम पे हर बच्चे बना रहा था, लेकिन मोहनदास को केटल, KETTL केटल, ये स्पेलिंग में उसको बहुत मुश्किल हुआ था। तो टीचर ने सिग्नल किया था, उसको विस्पर किया, कान में कुछ कहा हल्के से आवाज से। विस्पर का मतलब वो होता है कॉपी करने के लिए, दूसरा नेक्स्ट बॉय के कॉपी से। लेकिन मोहनदास ने ये नहीं किया, बिकॉज हिज कल्चर वाज गुड। ही डिडंट नो हाउ टू चीट, he didn't want to tell the lie, he was the follower of truth. So उसका मम्मी ने जो जिस किस्म का कल्चर सिखाया था, जिस किस्म का बिहेवियर सिखाया था, मैनर सिखाया था, वही महात्मा गांधी ने यहाँ फॉलो किया है। और टीचर का बातें को रिफ्यूज किया। द टीचर वॉज एनॉयड अथवा अपसेट, वो उदास हो गए क्योंकि मोहनदास ने कहा हुआ नहीं माना। लेकिन जो टीचर ने कहा था वो तो गलत था, इसीलिए मोहनदास ने नहीं माना उसको। तो उस टाइम मोहनदास कन्विंस्ड, कन्विंस का मतलब टीचर का कहना जो हो उसने नहीं माना, और वो कन्विंस भी नहीं हुआ, उससे कोई फर्क भी नहीं हुआ। Now, dear student, this was the good chapter about Mahatma Gandhi ji. This was all that we read today. It was a good part of his story about his childhood. Now, dear student, whatever the great difficult spelling, difficult words you may find in the passage, you just try to write in your notebook and you try to submit it in the app that has been mentioned for all of you. Dear student, this is part A. I am dividing this lesson. It is too lengthy, so I am dividing this class into two classes, part A and part B. Tomorrow we will be continuing part B, the rest of the story of our great Mahatma Gandhi ji. Till then, have a nice time. Thank you.